موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم رکھے ہیں۔ ان کو اگر گنے تو یہ 26 کے قریب احکامات بنتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 احکامات پڑھیں گے ان میں سے، دیکھتے ہیں ان کو۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے، فیصلہ کر چکا ہے تیرا رب، ہو گیا فیصلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے۔ کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہیں تم عبادت کرو مگر اسی کی۔ یہ عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ صرف عبادت ہوگی تو اس کی، اور کسی کی نہیں، میں اس کی طرف سے طے ہو گیا معاملہ۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت میں سجدہ بھی آ جاتا ہے، دعا بھی آ جاتے ہے، صدقہ و خیرات بھی آ جاتا ہے، نظر و نیاز بھی آ جاتی، کہ سب صرف اس کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ اور عبادت کے اندر خود کو انتہائی ذلیل کر دینا، الخضوع و تذلل، اپنے آپ کو بالکل گرا دینا، بچھا دینا محبت کے ساتھ، یہ ہوتی ہے عبادت۔ یعنی کوئی اس لیے نہیں خود کو جھکاتا کہ کوئی مصیبت ہے، کوئی کسی نے سر پہ ڈنڈا رکھا ہوا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے محبت ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یعنی احسان کس وقت میں؟ ایک تو احسان عام ہی ہے کہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا احسان کرنا ہے، مگر خاص تاکید کی گئی ہے یہاں پہ، اور وہ تاکید کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر، جب اگر وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ایک ان میں سے یا دونوں ان میں سے، تو اب کیا کرنا ہے تم نے؟ 3 باتیں بتائی گئی۔ اچھا، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد کس کا حق سب سے پہلا بیان فرمایا اور جس کا حکم دے دیا، وہ ہے والدین۔ اور والدین بھی اس ایج میں جس وقت کے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس وقت ان کے حق کو اور زیادہ بتایا گیا کہ اب ان کے ساتھ بالکل احسان کا رویہ، اور ان کے بارے میں تاکیدیں کی گئی کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے تمہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، مگر جو سبب بنتے ہیں انسان کی دنیا میں آنے کا، وہ ہیں اس کے والدین۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تمہاری نگہداشت میں ہوں، تمہاری زیر کفالت ہوں، تمہارے پاس ہوں، تمہارے پاس رہتے ہوں، اب تمہارے پاس رہتے ہیں تو دیکھیں اب یہ کیوں کہا گیا عندہ کا، پاس تمہارے، اس لیے کہ دیکھیں جو جیسے ہم لوگ دور اپنے والدین سے ہوتے ہیں تو وہ 2-4 منٹ کی کال کر لینا، یا 2-4 منٹ کے ان کے ساتھ بات چیت کر لینا، ہفتے میں 1 دفعہ یا روز بھی، یا سال بعد جا کے ان کے ساتھ 2 ہفتے گزار لینا، یہ تو آسان ہے۔ مگر جس کے پاس رہتے ہوں، جن کے پاس ان کا وقت گزرتا ہے، ان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے ڈیل کرنا۔ وہ تو آسان ہی، اب آپ ظاہر ہے 10 منٹ کی کال کر رہے ہیں تو وہ تو آپ اچھی طرح ہی بات کریں گے نا۔ مسئلہ ہی تب آتا ہے جب کہ وہ آپ کے پاس رہنے والے، تبھی گلے شکوے آتے ہیں، تبھی مشکلیں آتی ہیں، تبھی کئی چیزیں انوئنگ لگنے لگتی ہیں، کیونکہ اس عمر میں ظاہر ہے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بچوں والی ہو جاتی ہیں، اور عقل شعور ختم ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح کی ضدیں، اسی طرح کی باتیں، اس وقت میں پہنچ کے تم نے ان سے نفرت نہیں کرنی، ان سے گن نہیں کھانی، ان کو بے نہ سمجھ جان کے اور ان کو عقل سے آری سمجھ کے ان کے ساتھ ان کو مذاق کرنا، یا ان کو حقیر جاننا، یا ان سے چڑنا، برا سمجھنا، برا لگنا یا ڈانٹنا، یہ نہیں کرنا۔ ڈیل کرنا مشکل ہوگا obviously، اس لیے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ سب چیزیں ہیں، اسی وجہ سے خاص طور پہ بڑھاپے کی بات کی دیکھیں تو نہ تم کہنا ان دونوں کو اف۔ اف کیا ہے؟ اف کا لفظ
हालांकि कितना छोटा सा लफ्ज है, मगर इसी के अंदर छुपी हुई है दिल की घुटन, कराहत, क्या मसला है, नाराजगी। यानी इंसान बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ भी, उफ वो इस तरह करना, हकारत, नापसंदीदगी, और बहुत माइन्यूट सी, इतना भी ना कहना, इसलिए कि उनके दिल पे बहुत ये गरां गुजरेगी, उनका दिल इससे जख्मी हो जाएगा। देखिए बदजुबानी करना, बहसें करना, झगड़े करना वो तो दूर की बात है, उफ भी नहीं कहनी। अल्लाह अकबर, कि जरा सा भी ऐसा रवैया नहीं रखना जो कि बदतमीजी का, बदअखलाकी का हो। ना तुम उनको झिड़कना, अपने माँ बाप को झिड़की ना देना, डांटना नहीं, कोई ऐसे हकारत की कलिमात ना कहना, कोई ऐसी सख्त बात ना कहना, लाउड ना होना उनसे। तो कई दफा इंसान उफ तो नहीं कहता, लेकिन लाउड होता है, शाउट करता है, वो भी नहीं करना। वकुल्लहुमा, और कहना उनको औलन बात करीमा, इज्जत वाली। अब एक एक चीज गिनते जाएं कि क्या क्या आ रही है। 10 तो चीजें हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं, लेकिन ये जो एक एक चीज है ना, ये अलग अलग एक एक हुक्म आ रहा है, इसको भी आप देखें। एहसान उनके साथ करना, उनको उफ नहीं कहना, उनको झिड़कना नहीं है, उनको कितनी सारी बातें को वालिदैन के लिए आ रही हैं। अब मुझे बताएं, जहाँ पे उफ कहने की इजाजत नहीं है, वहां पे ओल्ड होम में छोड़ के आने की इजाजत हो सकती है कि वहां पे फेंक आना। अल्लाह अकबर। तो क्योंकि इस बारे में पूछ बहुत सख्त है, यानी कुछ गुनाह ऐसे हैं कि उनकी सजा जो है ना, इंसान को इस दुनिया में भी मिलती है, आखिरत में मिलनी है, लेकिन इंसान मरता नहीं है जब तक कि उनकी सजा ना भुगत ले इस दुनिया में। और उनमें एक वालिदैन की नाफरमानी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरा बाप है, मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसे ले लेता है, उसे पूछता भी नहीं। तो बात एक समझ जाती है कि हाँ बेटा कमाई कर रहा है, बाप पूछ तो ले बेटे से। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बुलाओ उसको। उसको बुलाया, उसे पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है, तो उनको बड़ा दुख हुआ बाप को। तो उन्होंने कुछ अशार कहे, जुबान से नहीं कहे, दिल ही दिल में शेर कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहा है वो आदमी आ रहा है, उससे कहना पहले वो शेर सुनाओ जो तुम्हारी जुबान से तो निकले नहीं मगर तेरे अल्लाह ने सुन ली है, वो शेर सुनाओ। अच्छा, वो आदमी आया जो बाप था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई वो शेर सुनाओ पहले जो तुम्हारी जुबान से भी नहीं निकले, तुमने दिल में ही कहे। कहने लगा या रसूलल्लाह, अल्लाह पे ईमान हमारा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है इन बातों की वजह से। क्या कहने उस रब के कि मैंने तो जुबान से भी नहीं कहे, जुबान पे आए ही नहीं और रब ने सुन लिया। सिर्फ ये तो मेरे जहन में ही थी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने क्या कहा? कहने लगा मैंने कहा, वो जो शेर थे उसने अरबी में सुनाए, उनका तर्जुमा आपको जाहिर है वो तो बात नहीं बन सकती, मगर उनका तर्जुमा आपको मैं बताती हूँ कि उसने कहा कि मैं ये कह पा रहा था कि मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हम तो उसी दिन मर गए, फिर हमने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। यानी हम अपने लिए नहीं फिर जीते थे, फिर तेरे लिए जीते थे। हम अपने लिए जीना छोड़ गए जिस दिन तू पैदा हुआ। हमने अपना सब कुछ तुझ पे लगा दिया, तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए कोल्हू के बैल की तरह गर्मी और सर्दी के थपेड़ों को सहते रहे, दुख दर्द झेलते रहे। तुझे तर खिलाने के लिए खुद खुश्क खाया, तुझे ठंडा पिलाने के लिए खुद गर्म पिया, तुझे सुलाने के लिए खुद जागे, तुझे सुख में रखने के लिए खुद दुख उठाए, तुझे ठंडी हवाओं से बचाने के लिए खुद ढाल बन गए, तुझे धूप से बचाने के लिए हम खुद तेरा साया बन गए।
चादर बन गए। जब कभी तू बीमार हुआ तो तुझसे ज्यादा हम बीमार हो गए। तेरी आह पे हमारी हाय निकलती, तेरे आंसू पे हमारी चीखें निकलती, और हम दोनों माहे बेआब की तरह तड़पते, पता नहीं तू मर ना जाए। यानी इस धड़का लगा रहता हमें कि कहीं तू तुझे को कुछ हो ना जाए। बीमारी और मौत अपने वक्त पर आती है, पर तेरा बीमार होना हमें सारी रात तड़पाता था। हमें ये लगता था तू नहीं हम बीमार हो गए, तू नहीं हमें दर्द उठाए, तू नहीं तो हम तड़प रहे हैं। और एक आंसुओं का सैलाब था जो थमता नहीं था, और अंदर में गमों की घटा थी, काली स्याह, जो छटने का नाम नहीं लेती। इसी तरह हम चक्की में पिसे और कोल्लू के बैल की तरह हम जुते, चले और थके और बिटे और पिसे। और क्या हुआ, हमारी जवानी का रस मुचड़ता चला गया और तेरे बचपन में जाके वो भरता चला गया। यानी जैसे समझने की एक एक कतरा वो इधर से मुचड़ रहा है और उधर उसको मिल रहा है। इसने अपनी जवानी गुलाई तो वो बच्चा परवान चढ़ रहा है, यानी वो ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अपने आप को नचोड़ के उसको दे रहे हैं कि वो अपनी जवानी पा सके। हमारे रंग रूप बिगड़ते चले गए, तेरा रंग रूप निखरता चला गया। हमसे जवानी का रस निकलकर तेरी कमजोर हड्डियों में उतरा, और हमसे बुढ़ापे ने रंग छीन लिया। जवानी ने तुझे रूप बख्श दिया, बुढ़ापे ने हमारे पत्ते झाड़ के रख दिए, और जवानी ने तुझे बारावर कर दिया, सरसब्ज कर दिया। तू लहलहाने लगा और हम खिजा के थपेड़ों का शिकार हो गए। तू सीधा हो गया और हम रुकू में चले गए। देखें, बच्चा सीधा होता जाता है, खड़ा होता जाता है, यानी वो जवान हो रहा है, और वो माँ बाप क्या हो रहे हैं, रुकू में जाते जा रहे हैं, वो झुकती जा रही है उनकी कमर। तू ताकत में आया, हमने लाठियां पकड़ ली। अब हमें उम्मीद लग गई, जैसे हम उंगली पकड़ के चले, जैसे हमने इसके पेशाब पखाने धोए, जैसे हमने इसको लोरियां दी, जैसे हम इसके लिए रोए तड़पे जागे, और कुछ नहीं तो हमारा हाल पूछ लेगा। यानी और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम इतना तो करेगा, हमारा हाल पूछ लेगा, हमारा थोड़ा बहुत तो ख्याल रखेगा। लेकिन एकदम तेरे तेवर बदल गए, तेरा मुंह चढ़ गया, तू दोस्त को करीब करने लगा, हमें धक्के देने लगा, हमें गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ा, दोस्तों की महफिल में जाके रौनक बना। हमने कभी पुकारा तो तेरे तेवर बदल गए, तूने बड़े सख्त आवाज में कहा, क्या सर खाते हो? तो हम दोनों बैठे, दोनों परेशान। क्या हुआ? हम परेशान कि क्या हुआ, मैं इसे पालता रहा। नहीं नहीं, गलती लग गई, इसने मुझे पाला है, मैंने नहीं इसे पाला, वरना कुत्ता भी एहसान मान रहा है। मैं अपनी 40 साल जिंदगी को झुठला रहा हूं, मैंने अपने बेटे को नहीं पाला, मेरे बेटे ने मुझे पाला, जब तो इसका तेवर बदला, इसका मुंह चढ़ा। अच्छा मेरा बेटा, तू बेटा नहीं बना तो पड़ोसी तो बन जाता, पड़ोसी भी ना बन सका। ये वो दर्दनाक दास्तान है जो अल्फाज के रूप में जब इसकी जुबान पर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से तो आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अल्लाह अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलसल रोने की वजह से आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को पकड़ा और फरमाया कि जा तू और तेरा माल तेरे बाप